Please prove me wrong. Assalamu alaikum. I migrated to Canada 2 decades ago. As even then, the economic and law and order situation in Pakistan, especially Karachi, had made Pakistan unfit for leading a comfortable life. At that time, I was working for a very prestigious government organization where merit was still in vogue to some degree. But then I saw the same culture creep in which plagued the government departments. I was working at Karachi nuclear power plant under the Pakistan Atomic Energy Commission. I just saw some of the highlights of the budget. Same old strategy, tax the salaried class and leave traders and zamindars untouched. The fact is that Pakistan has become unsustainable on every front. Government has the understanding that government employees will simply increase their rate of rishwat to compensate for tax increase and inflation. मेरा ये मानना है यार, जब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वैसे ही उसने रिश्वत लेके अपना गुजर बसर कर ही लेना है तो उनकी सैलरी ना बढ़ाएं और उनकी पेंशन कम कर दें। बोलो तुम लोग रिश्वत से पूरा कर लेना अपना जो भी, और वो करते हैं इन मोस्ट केसेस। आई एम नॉट सेइंग ऑल आर डिसऑनेस्ट, बट मोस्ट आर। बट खैर फिर उनकी वजह से दूसरे क्यों सफ़र करें। द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू गोज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स. वट एवर रिमेन्स इज प्रेजेंटेड टू आर्मी generals to fill their pockets. If Pakistan has a working nuclear arsenal, then what is the need for having such an enormous military and procurement of conventional weapons? मैं controversial कह रहा था. The armed forces have taken a whipping in all the wars with India. Now India is even more stronger. In case of war, Pakistan will be forced to use nuclear option to survive as they cannot match India in a conventional war. In fact, India is quite happy after capturing Kashmir. All it is doing now is to finance all the separatist movements in Balochistan, Gilgit-Baltistan regions. Pakistan is incapable of defending itself in every proxy war. Common man has become desensitized regarding where the country stands. 95% of the population is not sincere with the country. In every single field, Pakistan perfectly meets the criteria of a failed rogue state. Its only lifelines are foreign remittance and handouts from the other countries. Globally, it has become a joke and a laughing stock. Pakistani passport is worthless. Pakistani students are mostly incapable of competing globally with the likes of Indian and Chinese students. Indians have already captured most of the key positions in global tech market. Pakistan's eventual disintegration is the writing on the wall. It is just a matter of time, and the timing is in the hands of global players. The most alarming part is that Pakistanis are in a constant state of denial and think of themselves as the best people on the face of earth. They are happy in pointing shortcomings of other nations without realizing their own pitiful state. In the civilized world, animals enjoy a far better life than humans in Pakistan. The rest of the world is slowly closing its doors on immigration of Pakistani citizens as they do not bring any sought after skill and instead end up negatively impacting the civilized societies. In the last few years, there has been mass exodus from Pakistan either through legal means or illegal pathways. The only people who will eventually get stuck in Pakistan will be those who are incapable of competing globally. People refer to brain drain, but over the years, the quality of brain has deteriorated exponentially. Is there any solution from within Pakistan? No. From where would the solution come? Corrupt/incapable politicians, every single politician included, most corrupt judiciary, power-hungry corrupt military, morally corrupt and unskilled, uneducated youth. Talking of youth, I was surprised to learn that the live-in relationships in Pakistan have grown exponentially and Pakistan is now leading Southeast Asia in this trend. Another horrific aspect that now even married women are having multiple extramarital affairs. In such conditions, is there any realistic hope for Pakistan? If there is any practical and realistic solution to get out of the mess, then please enlighten me. Try to prove that my fears and facts are unfounded. So ये एक साहब हैं, आपने जैसे कि सुना कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर, एंड देन जब उनको लगा कि लाइफ is unfit for leading, when it became unfit for living or leading a comfortable life, he migrated like many of us do. जिसमें बहुत सारी चीज़ें की, they're not wrong, factually correct. ख़ास तौर पे जो बजट की बात की कि बस सैलरी क्लास को दबा के रखो और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इन्जॉय करता है, या फिर ये कि
जो फ्यूडल्स हैं उनको कोई हाथ ही नहीं लगाता, बिकॉज दी होल आपकी असेंबली जिन्होंने कानून बनाना है वही सारे लैंड ओनर्स हैं, तो वो कैसे कभी अपने ख़िलाफ़ कानून बनाएंगे? वो कभी भी टैक्स नहीं लगाने देंगे एग्रीकल्चर पे। या फिर जो है वो जिस तरह हम हर साल देखते हैं शुगर की शॉर्टेज हो जाती है, वीट की हो जाती है, वो खुद ही ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेते हैं और फिर जो है गवर्नमेंट पैसे देती है और फिर डॉलर्स में और फिर वो वापस आके रीसेल करते हैं। इट्स लाइक द होल थिंग। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, वी आर रनिंग इन सर्कल्स। यू पिक अप एनी न्यूज़पेपर फ्रॉम एनी टाइम इन हिस्ट्री, 70s का 80s का, आपको सेम खबरें दिखेंगी, विच मीन्स वी हैवंट मूव्ड एन इंच। ये जो आपने बात की कि कन्वेंशनली इंडिया हैज़ मूव्ड ऑन, और इन केस ऑफ अ कन्वेंशनल वॉर, आपने जैसे कि कहा कि पाकिस्तान इज़ नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग अ कन्वेंशनल वॉर, सो वी माइट हैव टू यूज़ न्यूक्लियर। आई डोंट थिंक, देखिए न्यूक्लियर इज़ अ मेरी नज़र में न्यूक्लियर पावर जो होती है वो डिटरेंस मैकेनिज्म होता है, ना कि वो यूज़ करने के लिए होता है। वो एक बार यूज़ हुआ, दुनिया ने देख लिया, और उसके बाद यूज़ कोई करता नहीं। वो फिर आप पे जिस तरह की सैंक्शंस लगेंगी अगले 100 साल तक की, you'll be dead. So I don't think anyone in their right minds would ever use a nuclear missile, वो भी आज के दौर का। हमने 60-70 साल पहले वाला देखा था, उसने जो हाल किया था। और फिर ज़ाहिर है सैंक्शंस कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ईरान अगर विद हेल्ड कर सका है इतनी सैंक्शन, दैट इज़ प्राइमली बिकॉज इट्स ऑयल रिच, और फिर उनके फिर दूसरे मीन्स हैं, एंड somehow they have survived. And of course Iran is one of the oldest civilizations. तो उनके पास ना they have something to hold on to. We have nothing. हम तो, हमारी तो हिस्ट्री शुरू या तो 1947 से होती है या 712 से होती है, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं ना पीछे। तो when you don't have history, you don't have any future. War मुझे लगता है कि इंडिया करेगा भी नहीं, बिकॉज अगेन यू डोंट हैव टू गो इन अ कन्वेंशनल वॉर जब आप दूसरे मीन से कॉन्कर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट इमेज की अगर हम बात करें, तो बॉलीवुड इज़ अ टूल, एवरी फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ टूल, और उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट तो डेवलप किया है अक्रॉस द ग्लोब। सिमिलरली टेक साइड की अगर हम बात करें, आई ऑलवेज मेंशन दिस, जब मैं 2003 में व्हेन द BCS यानी कंप्यूटर साइंसेस का कल्चर बड़ा बूम आया था यहाँ पे, मुशर्रफ के टाइम पे IT के प्रोग्राम्स काफ़ी इंट्रोड्यूस हुए थे। सो ऑल द बुक्स दैट आई हैड, C लैंग्वेज की, C++ की, विजुअल बेसिक वगैरह वगैरह, दे वर ऑल रिटन बाय इंडियन ऑथर्स। और मैं यही सोचता था उस वक्त कि यार हाउ फार अहेड दे आर इन कंप्यूटर साइंसेस, कि डिस्पाइट द फैक्ट मुशर्रफ का टाइम है, वी जस्ट रिसेंटली हैड द कारगिल वॉर, उसके बावजूद अगर हमारे करिकुलम में इंडियन ऑथर्स पढ़ाए जा रहे हैं, विच मीन्स दे मस्ट बी रियली रियली गुड, और वो हमें पढ़ाते थे। तो वो उसी का ही शाखसाना है, और फिर IITs बनाई और ये सारी चीज़ें जो हैं उसका ही रिज़ल्ट है जो आज हम एक बूम देख रहे हैं दुनिया भर में, स्किल्ड बूम। दूसरी चीज़ ये, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव मेंशन दिस कि देखो ये कहना बड़ा आसान है कि यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाती नहीं हैं। आपने ख़ुद कितनी कोशिश की कि कुछ सीख लूँ मैं अपने आप से। आई हैड, इफ़ यू गो ऑन माई कंपनीज लिंक्डइन, मैंने आई हैड पोस्टेड अ पोस्ट ऑफ रिसर्चर, बिकॉज आई वांट टू मूव टू द एक्सप्लेन्स वाला पार्ट, आई वांट टू डू मोर ऑफ दोज वीडियोज, आई एन्जॉय डूइंग देम। तो उसमें मैंने कैटेगोरिकली लिखा था कि इफ़ यू हैव डन एनी रिसर्च प्लीज़ ऑल्सो शेयर अपना रिसर्च वर्क जो आपने किया हो, चाहे वो आपका असाइनमेंट ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो। आई गॉट 200 ईमेल्स, 250 ईमेल्स, उसमें से एटलीस्ट 50 से 60 ईमेल्स ऐसी थी, एंड आई वेलकम यू ऑल टू कम ओवर या मीट मी, आई कैन शो यू ऑन माई कंप्यूटर। मैंने वो डिलीट नहीं की ईमेल्स, कि उसमें ईमेल पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लाइक यू ओपन एन ईमेल, इट्स ब्लैंक, और बस अटैचमेंट है रेज्यूमे किसका है? एक मेटलर्जिकल इंजीनियर था। आई मीन ठीक है, यू कैन बी गुड एट रिसर्च, यू कैन बी एनीथिंग एंड बी गुड एट रिसर्च, बट लाइक उसमें उनका रिसर्च से कोई लेना देना था ही नहीं। ही वॉज जस्ट रैंडमली अप्लाइंग। खैर वो वाली पार्ट तो अलग है कि गलत लोग अप्लाई कर रहे थे, बट किस तरह अप्लाई कर रहे थे ये भी बहुत गलत था। तो मैं यही सोचा था कि इन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है, और ये कैसे compete करेंगे अगर ये आज बस बोरिया बिस्तर उठा के दोहा चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, विच आई एम टेलिंग यू इट्स हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट नाउ एज अपोज टू 10 years ago। मैं मुँह उठा के चला गया था, मुझे एक हफ्ते में जॉब मिल गई थी, आई हैड अ करियर वट एवर,
जिस तरह का भी था, अप्स एंड डाउन्स हुए, इट टॉट मी अ लॉट, लिविंग अलोन टॉट मी अ लॉट. आई थिंक एवरी वन ऑफ देसी शुड बी लिविंग अलोन एट सम पॉइंट, क्योंकि हमें आदत होती है ना, खाना वहाँ से आ गया, कपड़े भी इस्त्री हो गए, कपड़े भी धुल गए, हम कभी हाइपर इंडिपेंडेंट रहते ही नहीं है. फिर जब सर पे पड़ती है ना, दैट्स व्हेन यू रियलाइज आई एम ऑन माई ओन, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, एंड वंस यू गेट इन टू दैट मोड देन देयर इज नो स्टॉपिंग. बट हम हमेशा कंफर्ट जोन में, अम्मी खाना दे देंगी, अब्बू पैसे कमा लेंगे, बंदा 24 साल का है, 26 साल का है, नेवर वर्कड इन हिज लाइफ, तो फिर ऐसे ही होता है. तो सो आई वाज जस्ट लुकिंग कि यार ये ग्लोबली कैसे, ये क्या ही लड़ाई करेंगे ग्लोबल मार्केट में, जिनको ईमेल लिखने नहीं आती, ईमेल बनाना आ गया, फ़ोन ख़रीदना आ गया, स्मार्टफोन पे आ गए, लिंक्डइन पे भी आ गए. There was this another guy. I wanted to make a video, but then I didn't want to reveal their identity. वो एक शादी में बैठा हुआ है, उसके सामने टेबल है, आई कैन सी द ग्लास जिसमें ड्रिंक भी है, एंड ही इज़ लुकिंग ओवर देयर, और वो उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल फ़ोटो है. मैं कोई 6 साल से इस तरह की वीडियोस बना रहा हूँ कि भाई प्लीज़ फोकस ऑन योर लिंक्डइन, बी मेक इट प्रोफेशनल. शादी की तस्वीर कौन डालता है? और फिर एक बड़ा मसला ये है कि हमारे बहुत सारे लोग सूट पहनते ही शादी में. आई ऑलवेज से कि अपना फ़ोन सस्ता ले लो, लाख वाला फ़ोन छोड़ो, 40,000 का ले लो, बट एक अच्छा सूट ज़रूर सिलवाओ. एक ब्लैक सूट सबके पास होना चाहिए, जिसका शादी से कोई लेना देना ना हो, वलीमे से लेना देना हो. इट शुड बी अ प्रोफेशनल अटायर. एक लड़का मेरे पास आया था फॉर द जॉब ऑफ एन एडिटर. ठीक है, अगेन माई सेटअप इज़ वेरी कैजुअल, वेरी कैजुअल. मैंने कभी किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, बिकॉज हमारे पब्लिक डीलिंग है ही नहीं, राइट. तो वो लड़का, ही वॉज क्लियरली हाई, और वो टी शर्ट और शॉर्ट्स में आया और चप्पलों में आया. यार you've come here for a job, आप जॉब पे आ जाओ, फिर भले चप्पल में भी, चप्पल तो खैर अच्छा नहीं लगता, शुड नॉट डू इट, मगर इंटरव्यू में तो ऐसे ना हो. आई इंस्टेंटली, लाइक ही हैड अ ग्रेट स्किल, बट मैंने ना उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो पॉजिटिव नहीं है, उसका एटीट्यूड का मसला है. तो इन द लॉन्ग रन ये मुझे पेन ही देगा, तो मैंने उसको नहीं हायर किया. पीपल डोंट नो अपेयर कैसे होना है, ईमेल कैसे लिखनी है, सैल्यूटेशंस क्या होती हैं, माई CV इज़ अटैच, थैंक यू. ये क्या हुआ यार, अपने बारे में थोड़ा तो बताओ कि दिस हु आई एम, आई सॉ द पोस्ट ऑन लिंक्डइन, आई थिंक आई कैन बी अ ग्रेट एडिशन टू योर टीम, आई हैव ऑलवेज हैड पैशन फॉर रिसर्च, हियर आर सम ऑफ द रिसर्चेस दैट आई हैव डन. मैंने जिन लोगों ने अप्लाई किया, जो लोग सुन रहे हैं, जिसकी सिर्फ एक अटैचमेंट थी ना, मैंने वो ईमेल बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दी, क्योंकि मैं आपके रिज्यूमे का क्या करूं. मैंने आपसे जब कैटेगोरिकली मांगा है कि प्लीज़ शेयर अ सैम्पल ऑफ एनी रिसर्च दैट यू हैव डन, राइट, आपने नहीं भेजा. तो क्लियरली, जब मैं इस बात पे कि मैं बहुत अच्छा रिसर्चर बनूंगा, प्रॉमिस, ऐसे थोड़ी हायरिंग होती है यार, शो मी. अभी एक बच्चे ने मुझे ईमेल आई थी इन बिटवीन ब्रेक, मैं देख रहा था, ही वांट्स टू बी माय ग्राफिक डिज़ाइनर, वो थंबनेल, बट उसने ये नहीं बोला कि मैं बहुत अच्छा थंबनेल्स बनाता हूँ. उसने एक प्रॉपर 7-8 पेजेस की मुझे PDF भेजी, जहाँ पे उसने कंपैरिजन दिखाए डिफरेंट यूट्यूबर्स के, कि ये उनका थंबनेल था, मैं होता तो ऐसा बनाता. और इस तरह के बहुत सारे थे, जॉनी हैरिस का भी था, मूरू का भी था, डिफरेंट लोगों के थे, राइट. दिस इज़ हाउ यू पिच. अब मैंने थोड़ी बैठ के पढ़ा कि उसने क्या पढ़ा है और वो कहाँ रहता है और ये है वो है. मैंने सिर्फ काम देखा एंड आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ गुड स्टफ. आई शेयर्ड विद माय टीम, बट देन मेजर वोट्स वर के जो हम बना रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है. तो ठीक है, बट दैट वाज अ गुड पिच, इट कॉट माई अटेंशन. आई डाउनलोडेड 23 MB की फाइल just to see that, and I shared it with a lot of people. Anyway, so people don't know अपना केस कैसे पुट अप करना है, नौकरी लेने कैसी. बस रोना ज़रूर है कि जी इमरान खान नहीं है या शहबाज शरीफ नहीं है तो नौकरी नहीं मिल रही. दे आर, उनका काम ही नहीं है, आपने खुद क्रिएट करनी है. एंड आई नो ऑल बिजनेस पीपल दैट आई नो, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड पीपल. आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर अ गुड रिसोर्स. लोगों को काम ही नहीं करना आता. प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज़ नहीं है, हड हरामी खून में रची हुई है. टाइम पे नहीं आना, या फिर जो है अपना काम सही से नहीं करना. सर पे बैठो तो काम करना है, थोड़ा आगे पीछे ट्रैवल करो तो काम ही नहीं हो रहा, अटेंडेंस ही नहीं है. एंड हर जगह का यही मसला है. एंड मेन वेमेन बोथ, बाय द वे, सबके अपने अपने बहाने रेडी हैं. ईद हो गई, ख़त्म हो गई, 5वें दिन भी जी दावत है इसलिए मैं लेट आया हूँ. हु डज दावत ऑन अ वेंसडे आफ्टरनून? काम का दिन है भाई, काम करना है. गर्मी हो रही है, क्या हो गया. बढ़िया, लोगों के यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं है और हमें सिखाया भी नहीं जाता. बस हमें ये सिखाया गया है कि भाई ये दुनिया बेकार है, आगे की दुनिया अच्छी है, उसकी तैयारी करो.
बिल्कुल करनी है, आगे की तैयारी बिल्कुल करनी है, लेकिन इसको भी अच्छा करना है। ये अच्छी होगी तो आगे की अच्छी होगी ना। यहाँ पे आपने हर किस्म की हड़हरामी करनी और एक्सपेक्ट करना आगे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। फिर हमारे यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी हमें सिखाई नहीं जाती। हमें मजहबी तौर पे भी जो अकाउंटेबिलिटी है वैसे तो बड़ा डराया जाता है कि हर नमाज का सवाल है और दिस एंड दैट। बिल्कुल सही है, मगर फिर ये भी है कि 27वीं शब को जाग लो तो ये भी माफ़, ऐसे हो जाओ, उम्रा करके आ जाओ तो ऐसे हो जाओगे जैसे बच्चा आज पैदा हुआ है। तो जब आप एक वॉशिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दोगे कि यार मैं सारा साल कुछ भी करूँ, बस मैं रमज़ान में उम्रा करके आ जाऊँ, तो हो गए मेरे गुनाह माफ़, मैं साइकिल गोज़ अगेन। अकाउंटेबिलिटी नहीं सिखाई हमने। सो वी डोंट क्रिएट, हमारे ना स्टूडेंट्स अच्छे हैं ना यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है, दैट्स अ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ कि यार उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा, या जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या वाइस चांसलर्स हैं वो अपना काम नहीं कर रहे, तो अब वो नहीं कर रहे, तो अब आपने क्या करना है, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना सारी ज़िंदगी। यार मुझे तो अच्छी, जैसे खान साहब नहीं बोलते मुझे अच्छी टीम ही नहीं मिली, मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, साहब नहीं बोला मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली। भाई लाइफ आपके हाथ में, इफ़ यू वांट टू मेक द बेस्ट ऑफ इट यू कैन। ये कंप्यूटर है, इंटरनेट है, वी लिव इन द बेस्ट एज। बहाने तो अब ख़त्म ही हो गए, बट हमारे लोगों को आप बहाने करा लें हर किस्म के। सो वी डोंट हैव अ यूथ दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू मीट बेसिक स्टैंडर्ड्स। मतलब आइडियलाइज स्टैंडर्ड्स तो दूर की बात है कि आप एक कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में अगर आप देखें ना, अभी कल मैं देख रहा था वो इंडियन प्रोडिजी, उसने वो चेस का वो जीता। हमारे यहाँ ना कोई भी दिमाग वाला गेम, दिमाग वाले सारे गेम हमारे यहाँ हराम है। लड़ाई झगड़े वाले गेम इसमें हम आगे हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स में आगे। आप हमारे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स देखें तो हमारे रिकॉर्ड्स क्या होंगे जी, सर से जो है ना वो अखरोट तोड़ दिए 500 एक मिनट में, या तरबूज तोड़ दिया हाथ से। सब फिजिकल होंगे, मेंटल नहीं होते, क्योंकि हमारी मेंटल कैपेसिटी नहीं है। हमने कज़न मैरिज कर करके जीन पूल या जीप किया हुआ है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, दूध नहीं मिलता पूरा, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। मॉब मेंटालिटी है, बस जिसने जो किया मैंने भी वही करना है, अपनी कोई सोच नहीं है। बहुत डीप रूटेड इश्यूज हैं। ये तो बहुत बात के मसले हैं कि जी कोई आ रहा है गवर्नमेंट में आ रहा है तो करप्शन कर रहा है, या अगर वो कोई जनरल है तो इस तरह कर रहा है, वो बहुत बात की चीज़ है। जो डेवलपमेंट फेज़ ही हमारी आउट है, मशीन ही ख़राब है जिससे बच्चे निकल रहे हैं। तो जो निकल रहा है उसको सही करने पे फोकस है, इसको सही करना है, अरे मशीन चेंज करनी है, मगर वहाँ तो कोई बात ही नहीं करता। सो और आपने क्या चीज़ें बोली, डिसेंसिटाइज्ड हैं लोग, अगेन ज़ाहिर सिंसियरिटी किसी की है ही नहीं। कंट्री देखिए, कंट्री जो है ना, अब आप क्या बोलें, हम हिस्ट्री नहीं है ना हमारी कोई, तो हिस्ट्री नहीं है, सो वी हैव नथिंग टू होल्ड ऑन टू कि यार ये ग्रेट नेशन है, 8,000 साल की हमारी सिविलाइजेशन है, इसको हमने अब होल्ड करना है। हम तो इसको रद्द करते हैं। कल मैं वो बिली कार्सन की एक पॉडकास्ट देख रहा था, ही वॉज मैंशनिंग मोइंजोदाड़ो एंड आई वॉज लाइक, मैं मोइंजोदाड़ो से 6 घंटे दूर रहता हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि कभी इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप किया गया नेशनल लेवल पे, या उसको सेलिब्रेट ही नहीं किया गया। हम मानते ही नहीं उनको, पता नहीं कौन लोग थे, असल लोग तो 47 के बाद हैं, बाकी तो सारे काफिर ही थे। तो हमें अपनी हिस्ट्री का ही नहीं पता। सो व्हेन यू डोंट नो वेयर यू कम फ्रॉम, यू डोंट नो वेयर यू गोइंग। सो हमारे जो है यूथ भी कोई इतनी ख़ास नहीं है। फिर हमारी जो हरकत है, जैसे कि आपने कहा ओनली लाइफ लाइन्स आर रेमिटेंसेज एंड हैंड आउट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, वही बात है, वो कब तक हैंड आउट देंगे? वो हैंड आउट इसलिए दे रहे हैं कि यार एक बिल्कुल भी गरीब नहीं करना ना एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री को, तो वो भी एक ख़तरा ही होती है दुनिया के लिए। बस इतना दो कि एक लाइफ लाइन चलती रहे। पर इट्स अ सैड पिटीफुल स्टेट नॉनदलेस, इट्स सैड यार, हमारा मुल्क है यार, इतना खूबसूरत मुल्क है। और जो आपने बात की कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ क्लोजिंग डोर्स, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। वी हैव अगेन नो गुड ट्रैक रिकॉर्ड। उमर चीमा साहब ने एक वीडियो बनाई थी कि दुबई में वीज़े क्यों बंद हो गए। समबडी इन द इंटीरियर मिनिस्ट्री स्पोक टू हिम एंड ही गेव अ लॉट ऑफ रीजंस। वही वाली बात, कोई स्किल नहीं होती किसी किस्म की स्किल। यार स्किल तो बहुत बात की चीज़ है। मैं तो कहता हूँ एक जो इसने पासपोर्ट बनाना है ना, ही शुड अंडरगो अ मैसिव एजुकेशनल प्रोग्राम कि भाई पहले तो ये चीज़ें सीख फिर पासपोर्ट मिलेगा। उसमें एक चीज़ है लाइन बनाना। मैं वहाँ कतर एयरपोर्ट पे था, यार मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन सा कीड़ा है लोगों के अंदर कि एक लाइन जो सिंगल फाइल चलती आ रही है, साथ में आके क्यों खड़े हो जाते हैं? वाई? उससे क्या, ये वही चीज़ होगी कि मैं लिफ्ट के बटन तेज तेज दबाऊंगा शायद जल्दी आ जाए। नहीं, वो अपने टाइम पे ही आएगी। इसी तरह क्यों अपने पेस पे ही चलेगी? तू मेरे बराबर में क्यों खड़ा है? पीछे होना नहीं। अच्छा पीछे भी अगर होंगे, ट्रॉली पहिया पैर पे मारते रहेंगे। आई डोंट नो, गैप नहीं है, क्योंकि हमारे सड़कें नैरो है ना, हम बड़ी चौड़ी सड़कें नहीं बनाते। तो
हम घुस घुस के रहते हैं, बाज़ार भी हमारे घुस घुस के, तो हमने वो चीज़ सीखी नहीं है यार कि एक फ़िज़िकल डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो हमें तो मैसिव प्रोग्राम्स तो इन्हीं चीज़ों पे, क्योंकि इन्हीं पे हम जज होते हैं फिर बाहर कि यार ये पाकिस्तानी लाइन नहीं बनाते। उसमें उमर चीमा साहब ने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की कि गैंग्स बनाते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं। एंड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स have told me कि यार it's easier to hire a South Indian because they listen to you. Exploitation के point of view से नहीं कह रहा कि हाँ वो में हाँ मिलाता है या ये है वो है, मगर पॉइंट बीइंग कि दे प्रोफेशनल, टाइम पे आते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं और जो है ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। हमें जो है लंबी लंबी नमाज की ब्रेकें भी चाहिए, लड़ाई झगड़ा भी करना है। दोहा में आई मेट समवन, ही टोल्ड मी कि झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे का सर ही फाड़ दिया, वो गैंग बने हुए थे, तो लड़ाई झगड़े बहुत हैं। फिर एक बहुत बड़ी चीज़ थी, बॉडी ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू है। अब इसको लोग बोलेंगे कि जी आई एम हेटिंग द पुअर और एनीथिंग, इट हैज़ नथिंग टू डू। इवन रिच पीपल स्मेल, यू गो टू मॉल्स जहाँ पे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, दे जस्ट डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक हाइजीन। ये हमारा बहुत बड़ा इशू है। व्हेन आई वाज डूइंग स्टैंड अप, द स्टेरियोटाइप्स जो वहाँ पे थे वो एक यही होते थे कि अरब की अगर कोई नकल उतारा तो वो यही बोलता था आई विल कैंसिल योर वीज़ा। इंडियन की अगर कोई नकल उतारा तो वो यही बोलता था आई विल कम फिक्स योर कंप्यूटर आईटी। और हमारा यही था कि कैब ड्राइवर है। हमारे रोल्स डिफाइंड हैं दुनिया में। यूएस की टीम में देख लें, जो इंडियन है ठीक है वो आईटी में ओरेकल में है, जो सिख है वो ट्रक चला रहा है, जो पाकिस्तानी वो ऊबर ड्राइवर है। रोल्स ही डिफाइंड है, स्किल ही नहीं है ना कोई। और बड़े सालों सालों तक वो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, अगेन बस खड़ा ही होना है और क्या करना है। ऊबर है, गाड़ी चलानी है, गाड़ी तो बंदा हर जगह चला ही लेता है। सो हम कोई स्किल लेके ही नहीं जाते और ये स्किल सारी ऑटोमेट हो जाएंगी, इतनी हाइपर विजिलेंस हो जाएगी कि सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी, एआई कर लेगा सारे काम, या गाड़ियाँ जो है सेल्फ ड्राइविंग हो जाएंगी। फिर पाकिस्तानी क्या करेंगे? दे नीड टू फकिंग वेक अप, स्किल सीखें, देखें दुनिया को क्या चाहिए। एक ही गाई का कॉन्सेप्ट यही है ना, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट कैन मेक मी मनी, और वही चीज़ निकालनी है। बस इनको यही देखना है, अच्छा जी कोर्स ख़रीद लेते हैं, अमेज़ॉन बन जाते हैं सारे। अब प्रोडक्ट बेचेंगे, प्रोडक्ट बनाएगा कब, बनाएगा कौन? कल को चाइना या माल बेचना ही छोड़ दे कि जी यहाँ से तो डॉलर ही हमारे नहीं आते, स्टेट बैंक डॉलर होल्ड कर लेते हैं, हमने शिपिंग ही बंद कर दी, या यहाँ पे इतनी और करप्शन बढ़ जाए कि जी हमने सामान करने नहीं, आप compete ही नहीं कर पाओगे मार्केट से। So yeah, there's a lot that can be said about these things. So yeah, immigration is going to be a huge problem for us. क्योंकि हमें जहाँ जाना है हम असिमिलेट नहीं करते, हम इंटीग्रेट नहीं करते। एस्टोनिया में व्हेन आई वाज देयर एंड आई विल बी देयर अगेन इंशाल्लाह वेरी सून, तो एस्टोनिया में जब आप नेशनैलिटी लेते हो तो उसका एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लैंग्वेज का भी है, जो कि बहुत सारे मुल्कों में होता है कि भाई आप इंटीग्रेटेड कितना हो हमारी सोसाइटी से, पासपोर्ट तो ले रहे हो। और एस्टोनियन लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। तो उसका मकसद यही होता है कि भाई इंटीग्रेट तो करो, यहाँ पे आके मिलो जुलो, हमारी ज़बान तो बोलो, पासपोर्ट लेके सारे मज़े लोगे, टैक्स तो ठीक है दोगे, लेकिन समझो हमारे कल्चर को। अब हम क्या है जी, जहाँ जाते हैं हमने उसको, हम जिस जगह जाते हैं पाकिस्तान छोड़ के उसको पाकिस्तान मनाना होता है, ठीक है। फिर हम किसी के त्यौहार में उसको विश करने जोगे नहीं रहते कि नहीं ये ऐसा है। फिर हम कहते जी हमें ये चीज़ चाहिए। भाई तुम्हें शरीयत चाहिए, अफ़गानिस्तान चले जाओ, इंग्लैंड में क्यों मांग रहे हो, नॉर्वे में क्यों मांग रहे हो भाई, अफ़गानिस्तान चले जाओ, पड़ोस में मुल्क है, नहीं वहाँ नहीं जाना। हमें मज़े वहाँ के वेस्ट के चाहिए, ठंड भी चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए, वेलफेयर भी, मनी भी चाहिए, लेकिन हमें शरीयत भी चाहिए। तो वो असिमिलेट नहीं करते, दे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द रेजिडेंट्स, दे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर पीपल। तो फिर वही होगा, इन लोगों की वजह से दूसरों के रास्ते बंद होंगे और आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। देख लें, अब कनाडा ने बंद कर दिए हैं स्टूडेंट वीज़ा, वो तो खैर ग्लोबली बंद किए हैं। ऑस्ट्रेलिया में सख्ती हो रही है। अगेन उनको ऊबर ड्राइवर्स कितने चाहिए यार, कोई और स्किल लेकर आओ, उनको होटल मैनेजमेंट के लोग चाहिए। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, ये सोच के कि यार मुझे शायद करना पड़े ज़िंदगी में। ये नहीं कि मुझे पैशन है हिल्टन में काम करना है या मुझे मैरियट बॉनवॉय में काम करना है तो मैंने होटल मैनेजमेंट, ये सोच के कि यार मुझे शायद कभी करना पड़ जाए। आई नीड टू नो ये कैसे होता है। नहीं, कुछ भी नहीं सीखा, मुँह उठा के चले गए। गाड़ी यहाँ पे सीख ली इलीगली चलाना, सिक्योरिटी में बस खड़ा ही होना है, तो इसके आगे सोचते ही नहीं है। फिर कहते हैं जी इंडियन को बड़ी प्रायोरिटी मिली, उसके स्किल भी तो होता है ना। वो चाचे मामे की थोड़ी ओरेकल या मेटा या गूगल, वहाँ ये थोड़ी चलता कि यार अच्छा चूँकि मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन ही रखूँगा। आप किसी हद तक प्रेफरेंस दे सकते हो, बट यार वो $1 ट्रिलियन कंपनीज ऐसी नहीं है कि जी मैनेजर ने बोल दिया तो हमने रख लिया।
वो स्किल भी देखते हैं यार, कुछ तो होगी ना स्किल यार। तो शिकायतें करना आसान है, बट वी आर अ शिकायत ओरिएंटेड नेशन, और हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, और जो है हम सबसे अच्छे हैं, वी आर द बेस्ट। खैर ये बातें मैं पिछले एपिसोड में भी कर चुका हूँ, सो डोंट नो नीड टू रिपीट दोज। और ये जो ब्रेन ड्रेन का लफ्ज़ है ना, ये गलत है। आई थिंक ब्रेन यहाँ ड्रेन में है। पाकिस्तान इज़ एन आइडियल कंट्री जहाँ पे आप अपने टैलेंट को ज़ाया करना है तो यहाँ आप यहाँ रहें। I was speaking to this wonderful football player, a female football player, who had to leave this because यहाँ पे फिर सोसाइटी में बड़े मसले थे, तो she left the country। भाई भी अच्छा कुछ खेलता था, लेकिन फिर यही कि इसमें तो कोई पैसे नहीं है, ये नहीं, सोसाइटी यहाँ पे ख़राब करती है, आपके टैलेंट को मारती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ 18-19 के हुए किसी ऐसी जगह जाओ कि जहाँ पे तुम्हारे टैलेंट की कदर हो, वरना 30 में तुम्हें रियलाइज़ होगा तो तब तक इट्स टू लेट। तो हमें बस सिर्फ गधे घोड़े चाहिए जो सिर्फ बेशक बेशक बोलें, और जो है बाहर जाएं, रेमिटेंस भेजें और मुल्क चलाते रहें। हमने सोच को परवान ही नहीं चढ़ने देते। रही बात आपकी कि एनी सोल्यूशन फ्रॉम विद इन, नहीं है सोल्यूशन। फिर ये है, और बहुत से लोग यही कहते हैं कि शायद हमें अकल तब आए जब पूरी दुनिया हम पे पाबंदियाँ लगा दें कि भाई इनके साथ ट्रेड भी नहीं करना, इनके सारे स्टेटस छीन लो, इनको प्रायोरिटी से हटा दो। फिर जब रोटी पे आएगी फिर शायद अकल आए, क्योंकि हमने हर चीज़ ख़राब कर दी है। टूरिज़्म हम बेचते हैं, वैसे ये कहने की बात है स्विट्ज़रलैंड जैसा है। स्विट्ज़रलैंड पहले जाके आप लोग देखें, आपको पता चल जाएगा। यहाँ आपको एक ढंग का वॉशरूम नहीं मिलता। कराची से खैबर तक आपके जो स्विट्ज़रलैंड जैसा मुल्क है, खाली पहाड़ थोड़ी होते हैं यार। पहाड़ तो यूरोप में भी बहुत पहाड़ हैं। पहाड़ के साथ बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं। उस पहाड़ तक मैं जाऊँगा कैसे? क्या वहाँ सड़क है, या कोई मोनो रेल है, कोई ट्रेन है, कोई सेफ्टी है? या अगर मैं जीप लेके जा रहा हूँ, वो जीप आपने देखे हैं रोड कैसे होते हैं। वो बाय द वे वो रोड बन सकते हैं जिस पे छोटी गाड़ियाँ भी चल सकती हैं, लेकिन वो जीप वालों की मोनोपोली है, जीप कौन लेगा? तो वो रोड ही नहीं बनाते, लोग मरते हैं, मरने दें। अच्छा आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे कोई नेटवर्क आता है, कोई एम्बुलेंस आ सकती है, कोई एयरलिफ्ट कर सकता है आपको? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, खाली पहाड़ ही देखने थोड़ी आते हैं लोग। सो अजीब लोगों के मंतक है। सो यही हो सकता है कि दुनिया शायद हमें सिखाए, क्योंकि देखें हमारा जो ये कहना है ना कि दुनिया हमारे खिलाफ साजिश करती है, अगर इस बात में किसी हद तक तस्दीक है या सदाकत है। देखें जब आपका ये मानना होगा ना कि पूरी दुनिया हमने कॉन्कर करनी है, तो फिर दुनिया को भी राइट है अपने आप को डिफेंड करने का कि नहीं, हम कॉन्कर नहीं होने देंगे। सो इससे पहले कि आप आके मेरे ऊपर चढ़ाई करो, तो फिर मैं आपके फिर गेम मैं भी ख़राब करूँगा। तो जिस दिन हमने ये कहना छोड़ दिया ना कि हमें दुनिया पे कब्ज़ा करना है, तो दुनिया भी हमारे खिलाफ करना छोड़ देगी। जिस दिन हमने ये नारा लगा दिया कि यार हमें दुनिया के साथ को एग्जिस्ट करना है, हमें दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, और हमें अपनी आवाम को भी वो आसाइशें और आराइशें और सुकून देना है जो दुनिया में लोगों को मिलता है, तब दुनिया आपके साथ शाना बशाना खड़ी होगी। वो आपको 10 चीज़ें सिखाएगी, आपको फिर सही मानों में अच्छा और पैसा देगी कि भाई ठीक है, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, को एग्जिस्ट करो। लेकिन जब तक आपका माइंड सेट होगा कि जी हमने तबाह करना है, तो कोई पागल नहीं है कि इतनी ट्रिलियंस की एम्पायर खड़ी करे और ताकि ये बावला आके इस पर फटे और हमारी एम्पायर ख़त्म हो। फिर उनको भी उतना ही हक है अपने आप को डिफेंड करने का। सिमिलरली कल को अगर लेट से पोलैंड कहता है कि जी हम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं और हमारा राइट है पूरी दुनिया पे राज करने का, तो फिर पाकिस्तान को भी राइट है कि ऐसी की तैसी कैसे राइट है। फिर हम भी साजिशें करेंगे और हम भी मेक श्योर करेंगे कि तुम अंदर ही अंदर इम्प्लोड हो जाओ, तुम्हारा गंद बाहर ना आए। सो ये कहना आप छोड़ दें और दुनिया के साथ चलना सीखें, तो शायद दुनिया फिर आपको चलाए अपने साथ। लेकिन जब आप इस तरह के मन तक रखेंगे, और ये हमारा हर तीसरा बंदे का यही माइंडसेट है कि जी हम तो आए ही दुनिया पे रूल करना है। घर में रूल है नहीं, गली में रूल है नहीं, गली में कचरा है, लेकिन दुनिया रूल करनी है। तो इन चीज़ों से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, अगेन इट रिक्वायर्स अ मैस री एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो जब तक वो नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। फिर यही होगा कि घसीट घसीट के जैसे चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली शायद वैसे ही चलता रहे। अल्लाह खैर करे, और बहुत दुआएं यार। बहुत खूबसूरत मुल्क है, हमारी ख्वाहिश है कि ये तरक्की करे और आगे बढ़े, और लोगों को वो बेसिक राइट्स मिलें, लोग बेसिक चीज़ें एंजॉय करें, बेसिक रिस्पेक्ट एक्सपीरियंस करें। मेरे तो बड़ी ख्वाहिश है दिल से, बट पता नहीं क्या हमें किसी की बद्दुआ है, ये हमारे अपने काम है से।
खैर अल्लाह रहम करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।